जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को प्यार भरा नमन और सारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। Again, like we say, there are no coincidences ever in Guruji's world. So welcome, Sarika, first of all, on behalf of all of us and of course all the Sevadars of the multilingual team. I am actually on the go as we speak, so please pardon any background noise if at all you guys hear it. So the satsang, like we say, every living moment that we breathe and maybe even beyond is a satsang in itself. And as luck would have it, Uncle requested that, why don't you do an intro for Sarika? And I said I would have loved to do it, but the timing just doesn't work. And I joined a few minutes ago and I said, Uncle, I have 10 minutes and after that I must drop. But again, as Guruji's will, Guruji just delayed me by, I want to say, just about the right time where I could do this. And I feel so privileged and so honored to be introducing Sarika. Sarika, I have known you for, who's counting the years anyway? And the one thing that's jumps out at me the second I think about you, Sarika, is the way you love Guruji and how devoted you are to Guruji and how proudly you refer to Guruji as your Papaji. And I'm sure you'll be sharing that satsang with all of us here. So without any further ado, I would like to hand this over to my other namesake, Aarti, who's going to convene the rest of the session. Suresh, Uncle, thank you as always for giving me this opportunity to just jump right in and welcome, a very warm welcome to you once again, Sarika. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Thank you, Aarti, and safe travels. Get home safe. Thank you, sweetheart. Jai Guruji Sangat Ji, it is an honor to welcome my Guru sister, dear friend Sarika Auntie, to hear her satsang. Like Aarti said, who's counting the years? I've known Sarika for several years, and she has the sweetest and most giving heart I've ever encountered. Sarika is a superwoman who lives in New Jersey, manages a toddler family, her job, and yet I've never seen a frown on her face. She is somebody, when I meet her, when I talk to her, I feel oh my God, this is what Guruji intended us to live life like. She is the sweetest soul. जब वो बात करती हैं, उनके चेहरे पे शिकन नहीं होती, उनकी आवाज में जो मिठास झलकती है, उनको सुन के, उनकी बातें देख कर मुझे लगता है कि I need to talk more like her, I need to be more उनके ऊपर दिखाई देता है कि गुरुजी की जो कृपा बरस रही है। और ऐसा नहीं कि लाइफ में उनके प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लेकिन उनकी आवाज में कभी वो झलकता नहीं है। शी इज ऑलवेज देयर फॉर द गुरु संगत। शी इज सच अ गिविंग सोल। उनकी हर बात में मुझे गुरुजी की टीचिंग्स झलकती हैं। सो आई हैव लर्नड अ लॉट लिसनिंग टू हर सत्संग्स। एंड आप लोगों को ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए, लेट्स हियर डायरेक्टली फ्रॉम सारिका आंटी। वेलकम सारिका। Jai Guruji, everyone. Am I audible? Can everyone hear me? Jai Guruji, you're audible. Yes, you're audible. और सबसे पहले तो थैंक यू अंकल, ये सेवा देने के लिए, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, with folded hands, and more so today आपको याद रहा, and this is sweetest surprise, आपने दोनों आरती को लाए जो कि they are literally like, I don't have words, I just love them, and this is like the sweetest surprise. So जय गुरुजी सारिका आंटी, ये सब गुरुजी की कृपा होती है। बिना कृपा के मैं दोनों आरतियों को लेके भी नहीं आ सकता। बिल्कुल उनकी कृपा है, लेकिन आप मीडियम बने तो उसके लिए थैंक यू। गुरुजी भी अपने मीडियम्स चुनते हैं। तो और जैसे मैं आरती को हमेशा बोलती हूँ, वो इस चीज को एक्नॉलेज करे ना करे इसके बारे में वो ज्यादा बोलती नहीं है, पर उसको भी नहीं पता वो कितने लोगों को कनेक्ट करती है, कितने लोगों को उसके थ्रू सेवा मिलती है, मी बीइंग वन ऑफ देम। एंड सब जानते ही हैं। एंड जो दूसरी आरती हैं वो भी, हम क्या बताऊं कैसे हमारा शुरू हुआ
गुरुजी के थ्रू ही, लेकिन आज शी इज वन ऑफ both of them actually are very close to me. I love them dearly and I just know हम बात करें ना करें, लेकिन गुरुजी ने ऐसे जोड़ के रखा है कि आपको पता है साइलेंटली ये लोग साथ हैं आपके। तो ये जो सिस्टर्स गुरुजी ने दिए हैं उसके लिए गुरुजी को बहुत बहुत थैंक यू। आज वो दोनों आए हैं तो थैंक यू अगेन। एंड इसी के साथ though there's lots to say for both of them, but I know अंकल आप चाह रहे थे कि सत्संग शुरू किया जाए, तो सबसे पहले तो गुरुजी का शुक्राना कि उन्होंने बुलाया। हम कनेक्टेड पता नहीं कब से है, लेकिन इस जन्म में जब उन्होंने बुलाया तो that was year 2005 March 18th and मैं just to give everyone a little background, मैं जब छोटी थी तो ये मेरे वर्ड्स हैं that you know भगवान तो कुछ नहीं होते, everything is science, because वो तो आपको नजर आता है ना, it's like cause and effect, everything can be explained, it can be understood with evidence, with like you know with repeated experiments, everything. तो ये मैं बोलती थी कि भगवान तो कुछ होते नहीं, एंड किसी ने मेरे फैमिली में कहा था कि हाँ उसको छोड़ दो, और मेरे फादर ने भी कहा उसको छोड़ दो, जिस दिन वो बिलीव खुद करेगी यू नो लेट दैट बी हर कॉल। सो एज आई ग्रू अप तो द हायर पावर भगवान जी में फेथ बढ़ता गया, लेकिन उनकी कोई शक्ल नहीं थी मेरे दिमाग में। मैं मंदिर जाती थी पर मैं रिलेट नहीं कर पाती थी, मैं वहां बैठ के मुझे कुछ सुकून नहीं मिलता था, इतनी आवाजें सब कुछ, और कभी कनेक्शन नहीं फील हुआ, नॉट एज अ डिसरिस्पेक्ट टू एनी होली प्लेस। द्वारे जाती थी तो फिर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर पाती थी, जाके थोड़ा कनेक्शन वहां, थोड़ा चर्च में, बट कुछ कोई रिचुअल नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक हायर बीइंग में मुझे यकीन होने लग गया था, क्योंकि ऐसी ऐसी लाइफ में सिचुएशंस आई जहां मुझे लगा सिर्फ उन्होंने ही निकाला। बट लाइक आई सेड, कोई एक शक्ल नहीं थी मेरे मन में, मेरे दिमाग में, जिनको मैं कह सकूं हाँ ये मेरे भगवान जी हैं, मैं इनको एक ये उनकी शक्ल है जिनसे मैं आइडेंटिफाई करती हूँ। सो यू नो फास्ट फॉरवर्ड टू 2005, मैं MBA कर रही थी एंड मैं अपने लास्ट सेमेस्टर में थी MBA के। बहुत अच्छा टाइम था लाइफ का, मेरे को कोई दुख नहीं था, वो एक बल्कि फेज था लाइफ का जहाँ कोई दुख था ही नहीं, मैं बहुत खुश थी, I was making very good grades, मेरी प्लेसमेंट भी हो चुकी थी ऑन कैंपस, एंड जो जैसी जॉब मुझे चाहिए थी, I wanted to go abroad, मैंने वेट किया लेकिन मुझे मेरी जॉब मिल गई, एंड my first assignment was to be in UK, and ये सब फेब में हो चुका था। मैं बहुत खुश, पढ़ाई का भी लोड नहीं, इतना कुछ। my husband now, who was my boyfriend then, तो हमारे बीच भी सब ठीक, घर में सब कुछ पता था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सब अच्छा चल रहा था। एंड cut to comes March 16th 7 again, it was a Wednesday, I remember। मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ MBA में पढ़ती थी, उनका नाम अनुष्का, वो उनकी जॉब उसी दिन हुई, और एक दिन पहले जो भी उनको जॉब मिल गई फाइनली, एंड वो एक्चुअली उषा आंटी की नीस है, और वो मेरे साथ थी, और उनकी जब जॉब लगी तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने गुरुजी को जाके थैंक यू करना है। मैं कहा गुरुजी कौन है? तो उन्होंने मेरे को कुछ सत्संग सुनाने शुरू किए गुरुजी के, अपने फैमिली में जो उनके हुए हैं, और जितना वो सुनाती गई मैं बस सुनती गई। आई फेल्ट so engaged, and मैंने उनको फिर बोला that पता नहीं what came over me, like someone like me, and I told her, she said मैं जाऊंगी गुरुजी को थैंक यू करने। मैंने कहा मैं भी चलूं साथ में, मेरे को भी ले चलोगे? She said yeah sure, and so Friday March 18th in the evening she picked me up and she took me to Empire State। मुझे खास कुछ नहीं पता था कि वहां पे क्या होता है, कैसे होता है, बट लाइक अ मॉथ टू अ फ्लेम, या जैसे आप, नॉट टू कॉल माई सेल्फ मॉथ, विल यूज अ बेटर एग्जाम्पल, जैसे कुछ फ्रेग्रेंस होती है जो आपको अट्रैक्ट करती है, कोई भी चीज जिसकी तरफ आप खींचे चले जाते हैं, आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं,
मुझे उस दिन ऐसा लगा कि मैं आई फेल्ट वेरी ड्रॉन। तो वो गुरुजी का तरीका था बुलाने का। उसने कुछ कन्विंस नहीं किया, वो ऐसा करती भी नहीं है। टिल डेट शी इज अमेज्ड बिकॉज़ वो गुरुजी के बारे में ऐसे किसी से बात नहीं करती। इसलिए मुझे आज तक नहीं पता कि मैंने क्यों बात की। मैंने कहा मुझे आज तक नहीं पता कि मैं क्यों चल पड़ी। मैं तो मानती भी नहीं थी किसी में ऐसे। तो हम वहाँ गए। लाइक आई सेड, मुझे पता नहीं था कि क्या कैसे होता है, बट ऐसे जो जो सब कर रहे हैं, आई कीप फॉलोइंग दैट आउट ऑफ रिस्पेक्ट। सो आई वेंट। आंटी वो अभी रिक्वेस्ट आई है पांचिल संगत से कि प्लीज हिंदी या पंजाबी में कुछ बोल सकती हैं आप? ओके, सॉरी अंकल, मैं नहीं जस्ट हाँ जी, नहीं सॉरी अंकल, डेफिनेटली मेरे को पंजाबी नहीं आती, मैं हिंदी में बोल लूंगी। थोड़ा बीच में इंग्लिश वर्ड्स यूज करूंगी जिसकी हिंदी मुझे नहीं आती। जी जी। सॉरी एवरीवन। मैं हाँ, तो मैं उधर गई और मुझे नहीं पता था कि वहाँ सब कैसे चलता है। तो मैंने कहा जैसे जैसे सब करेंगे मैं वैसे वैसे फॉलो कर लूंगी सबको। तो वहाँ पहुंचे और वहाँ पे जब जैसे ही हम पहुंचे तो मेरी जो फ्रेंड है अनुष्का, उन्होंने मुझे, वहाँ सेवादार अंकल खड़े थे, सिंगला अंकल, तो मेरे बारे में कुछ बोला और सिंगला अंकल ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया, पॉकेट साइज ऐसे। मेरे आज तक वॉलेट में है वो जो मुझे स्वरूप मिला। एंड तो अनु हैरान, वो कहती है तुम्हें स्वरूप मिल गया? मैंने कहा हाँ। कहती है इसको संभाल के रखना और कभी मांगना नहीं, ये खुद मिलता है। अब उस टाइम में ना आपको ऐसे ही नहीं, आप डाउनलोड नहीं कर सकते थे, आज तो बहुत इजीली अवेलेबल है, तब ऐसे नहीं मिलते थे। तो जब मिल जाते थे, जब बट रहे होते तो बहुत बड़ी बात होती थी, जो मुझे बताया गया। शी सेड कभी खुद नहीं मांगना, ये मिल गया है तो तुम्हारा प्रसाद है। मैं कहा ठीक है, तो मैंने रख लिया उसको अपने पास। फिर हम जाके बैठे और पिन ड्रॉप साइलेंस, शब्द चल रहे। वो माहौल मैं आपको बता नहीं सकती, बिकॉज वो माहौल ऐसा था कि मुझे नहीं पता हेवन, स्वर्ग कैसे दिखता है, लेकिन और देवताओं का कैसे दिखता है जब वो सब बैठे हो, कैसी रौनक होती होगी। पर अगर मैंने लाइफ में उससे कुछ भी क्लोज एक्सपीरियंस किया है तो वो ये है, जब मैं गुरुजी के संगत में गई पहली बार एम्पायर स्टेट। सब बैठे हुए थे, पिन ड्रॉप साइलेंस होते हुए, वो शब्द बजते हुए, ऐसा माहौल, ऐसी रौनक, इतनी खुशी, इतनी पॉजिटिविटी मैं आज भी फील कर सकती हूँ उसको, जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ। मैं जाके बैठ गई, जो सब कर रहे थे मैंने किया। मैं वैसे चाय नहीं पीती हूँ, पर चाय प्रसाद था तो मैंने पिया। वही आवाज नहीं जैसे सब लोग कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, कोई आवाज नहीं होती थी, जबकि शीशे के ग्लासेस में मिलता था चाय प्रसाद। एंड ये सब होता रहा। एंड जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड, मुझे मेरा नाम कभी पसंद नहीं आया। बचपन से मैं लोगों को झूठ झूठ बताती थी अपना नाम, क्योंकि मुझे मेरा नाम पसंद नहीं था। तो उस वक्त जो भी मूवी की एक्ट्रेस मुझे अच्छी लगती थी, मैं उसका नाम बता देती थी लोगों को, हाँ मेरा नाम ये है। तो और फिर मैं भूल जाती थी मैंने किसको क्या बताया है। जब वो दोबारा लोग मिलते थे और मुझे याद ही नहीं होता था मैंने अपना नाम क्या बताया है, ये मैं करती थी। और मैं अपने घर वालों से भी बहुत लड़ी हूँ कि मेरा नाम सारिका क्यों रखा, कुछ भी रख देते, मडोना रख देते, मुझे वो बहुत पसंद थी। क्योंकि मेरी दादी ने रखा था तो ऑब्वियसली किसी ने कुछ कहा नहीं, तो मेरा नाम यही था। और अब क्योंकि मेरी जॉब हो गई थी और यू नो ऑब्वियसली नाउ यू एन एडल्ट, आपने पढ़ाई खत्म कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, अब तो जॉब मिल रही है, आप घर से बाहर जा रहे हो, और मेरा पासपोर्ट रिन्यू होने जाना था, तो मैंने सोचा मैं अपना नाम बदल देती हूँ जाके। मैं तो बड़ी हूँ, मैं अपना नाम बदल दूंगी। तो ये बस मैं सोच ही रही थी। तो जब मैं मार्च 18 गुरुजी के पास गई और जब संगत खत्म हुआ और जब आज्ञा लेते हैं तो सब हो गया, लंगर हो गया, मिर्ची लगी मुझे, लेकिन मैंने सब खत्म किया। 4 लोग बैठ के खा रहे थे। तो जब वो आज्ञा लेने जाते हैं तो मेरी जो फ्रेंड है अनु, उन्होंने मेरे को गुरुजी से इंट्रोड्यूस किया और कहा कि ये मेरी फ्रेंड मेरे साथ MBA में पढ़ती है। गुरुजी मेरी तरफ कहते हैं देख के ना की है, मैंने कहा सारिका। कहते हैं सारिका, नाते बड़ा बढ़िया है बस। और फिर वहां मेनका गांधी आंटी बैठे थे
उन्होंने मेरे नाम का मतलब ट्रांसलेट किया गुरुजी के लिए, और मैंने कहा ओके, मैं कहा तो बड़ी हाई फाई अच्छी जगह है, मैंने कहा बड़े बड़े लोग मेरे नाम का मतलब ट्रांसलेट कर रहे हैं। एंड पर क्योंकि मुझे उसी वक्त याद था कि मैं उसी वक्त गुरुजी से मिली थी, उन्होंने कहा नात बड़ा वधिया है, तो मैं कहा ठीक है अब नहीं बदलते। एंड माइंड यू उसी से ऐसा हो चुका है उससे 1-2 बार पहले कि मुझे एस्ट्रोलॉजर या किसी ने बोला भी है कि मेरा नाम मेरे लिए बहुत लकी है। एंड तो पर गुरुजी ने बोल दिया कि नाते बड़ा वधिया, मैंने कहा ठीक है अब नहीं बदलते स्ट्रेट। तो मैं बस वो आगे लेके हम चले गए घर। तो तब भी मैंने उनको कोई भगवान का दर्जा नहीं दिया, पर मुझे उस दिन वहां जाके ऐसी खुशी मिली, इतना पॉजिटिविटी। मैं घर जब पहुंची तो रात के आराम से 11 या कुछ बज रहे होंगे, तो बाकी सब सो चुके थे, मेरे सिर्फ 2 चाचा जगे हुए थे, लेकिन आई वाज जंपिंग, मतलब जब मैं बहुत खुश थी, जैसे उछल रही थी, इतनी खुशी थी मुझे अंदर। और मैंने वो दोनों चाचा जो जगे हुए थे उनको जाके मैंने बोला, मैंने कहा आप जानते नहीं हो मैं कहाँ हो के आई हूँ, मैं कहाँ हो के आई हूँ, मेरे को इतना अच्छा लगा, मैं बस ये बोलती गई उन्हें। एंड मैं बार बार बोल रही हूँ मुझे सबको लेके जाना है, मेरे को सबको लेके जाना है उधर। एंड वो ऑब्वियसली बच्चा है टाइप्स, ऐसे करके उन्होंने छोड़ दिया जो भी। बट उसके बाद मैंने अपनी फैमिली से बहुत लोगों से कहा कि चलो चलो चलो, कोई चला नहीं। तो मुझे बुरा लगता था कि कोई चल नहीं रहा है, उनको तो पता ही नहीं क्या मिस कर रहे हैं, कैसी जगह है, कितनी खुशी मिलती है, कितनी पॉजिटिविटी। तो पर वो मेरी फ्रेंड अनु है, उसने मुझे कहा कहती है ओके कोई नहीं चलता। तो वो गुरुजी कहते हैं अगर फैमिली से एक भी आ जाए तो सब ब्लेस्ड है। मैं कहा ओके। तो उस दिन के बाद मैंने किसी को भी बोलना छोड़ दिया। मैं कहा ठीक है जैसे गुरुजी की मर्जी। तो नाउ मैंने आपको बताया मार्च 18 फ्राइडे को मैं गुरुजी से मिली थी, और मैंने आपसे बताया था मेरा पासपोर्ट रिन्यूअल पे जाना था। तो मेरा पासपोर्ट रिन्यूअल पे जाना था और मुझे वीजा के लिए जाना था यूके के लिए। एंड मेरे को अपना पासपोर्ट मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ गायब। तो मेरा मॉम ने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया, नहीं मिला ना। वो मुझे टेंशन होने लगी क्योंकि मेरे को वीजा के लिए जाना था। एंड मैं गुरुजी को मिली हूँ फ्राइडे मार्च 18, थर्सडे मार्च 24। तो गुरुजी उन्होंने मुझे सपने में दर्शन दिए, और मैंने देखा वो मेरे MBA इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं। वो आते, उनके पीछे उनके गुणगान, उनकी पूरी संगत ऐसे करके आ रही है, उन्होंने माला वगैरह सब पहना हुआ है, और मेरे सामने आके खड़े हो गए। मैं वो देखती रही ऐसे ही। मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा, तो गुरुजी मेरे तरफ देख के बोलते हैं क्या हुआ? तो मैंने कहा गुरुजी आई एम सॉरी, मुझे पता है मुझे आपको गुरुजी बोलना चाहिए, लेकिन मेरे मुंह से पापा जी निकलता जा रहा है, तो आई एम सॉरी इस चीज के लिए। तो गुरुजी कहते तो क्या हुआ, मैं तेरे पापा जी जैसा ही तो हूँ। एंड माइंड यू मैंने ये कभी वर्ड नहीं यूज किया पापा जी, ना ही मैंने किसी और से सुना पापा जी बोलते हुए, सिवाय वो उस टाइम में वो सीरियल आता था जस्सी जैसी कोई नहीं, और वो अपने फादर को पापा जी बुलाती थी और मैं वो सीरियल देखती थी। तो वही शायद रेफरेंस रही होगी, मुझे नहीं पता। पर मैंने गुरुजी को पापा जी बोला अपने उस सपने वाले कॉन्वर्सेशन में। मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ, मैं तेरे पापा जी जैसा ही तो हूँ। फिर मेरे को देख के कहते क्या हुआ? मैंने कहा गुरुजी मेरा पासपोर्ट खो गया। कहते मिल जाएगा। मैं गुरुजी मैंने बहुत ढूंढा है, नहीं मिल रहा है। कहते मिल जाएगा। ऐसे ही मैं बोलती गई कि नहीं मिल रहा है, ऐसे ही वो बोलते गए कि मिल जाएगा। मैंने एंड में बोला, गुरुजी अब ये तो मिल नहीं रहा, मैं दूसरा बनाने दे दूं? तो गुरुजी की एक बड़ी नॉटी सी स्माइल, और वो मुझे बोलते हैं दे दे। और मैं जिस वक्त गुरुजी से ये बात कर रही हूँ, सुबह के 4-5 जो भी बजे थे, मैं ये उनसे सपने में बात कर रही हूँ कि मेरा पासपोर्ट खो गया है, मैं बनाने दे दूं। वो कह रहे दे दे। जैसे ही उन्होंने कहा दे दे, उसी वक्त मेरी मम्मी आई मेरे रूम में, रियलिटी में। उन्होंने मुझे ऐसे हिलाया, उठाया और बोला ये लो तुम्हारा पासपोर्ट। मैं कहाँ मिला? तो कहते हैं उसी जगह जहां ऑलरेडी 2 बार देख चुके थे। वो अपनी एक चीज, अपने साइज की एक चीज के नीचे था, तो इसलिए शायद नहीं दिखा होगा। मैं हिल गई बिल्कुल। मैंने कहा ये क्या हुआ अभी मेरे साथ? एंड क्योंकि सुबह के 4, और मेरी मम्मी कभी मेरे रूम में इतनी सुबह नहीं आएगी, खतरे से खाली नहीं होता मेरे रूम में, किसी को मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो ये सब
जैसे गुरुजी कहते हैं देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। मैं सुबह को बहुत वो थी हैरान, और फिर मैंने सोचा मैं अपनी फ्रेंड को फोन करती हूँ। एंड जैसे ही मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ। कहती है तुम प्लीज ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम अपने आप को बहुत लकी समझो, तुम पहले दिन आई तुम्हें गुरुजी का स्वरूप मिल गया, गुरुजी किससे बात नहीं करते थे, आपसे बात कर ली, और 1 हफ्ते के अंदर ड्रीम में दर्शन भी दे दिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। लोग 10-10 साल वेट करते हैं, तो आप जाओ और शुक्राना करो। तो वही छोटा दिमाग, मैंने कहा अभी तो एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मैं 2 हफ्ते बाद जब खत्म हो जाएंगे मैं जाऊंगी। कहती है ओके। तो इसके बीच में मेरी फ्रेंड की जो बुआ थी, मासी या बुआ, वो गुरुजी के पास गई, और मेरी फ्रेंड को छोटी बुलाते थे। तो ऐसे ही उनको तो ये शेयर कर चुकी थी सत्संग, तो गुरुजी ने, तो वो जो उनकी आंट थी, उन्होंने गुरुजी से कहा वो छोटी की फ्रेंड, गुरुजी ने बस यूं कर दी। गुरुजी को पता था कि क्या हुआ है। और जब फाइनली मैं गुरुजी के पास पहुंची थैंक यू करने के लिए, मैंने सोचा था मैं ये बोलूंगी, मैं वो बोलूंगी, पर जैसे उनकी आज्ञा ली मैं कुछ नहीं बोल सकी, और मैंने इतनी हल्की आवाज में उनसे थैंक यू बोला जो शायद मुझे भी नहीं सुनाई दे रही थी। तो मैंने बस कहा गुरुजी थैंक यू, और उन्होंने कहा जय अश्कर। ये तो रियलिटी में था। मैं जब एम्पायर स्टेट गई उनको थैंक यू बोलने के लिए, तो उनको सब पता था, उन्होंने ही सब किया, उनको तो सब पता ही था। एंड उस दिन मेरे को बस लगा कि मुझे कोई मिले हैं जो अब जिनसे मैं सब बात कर सकती हूँ, सब मांग सकती हूँ, सब पूछ सकती हूँ। तब तक मैंने उनको भगवान का दर्जा नहीं दिया था, लेकिन एक महापुरुष का जरूर दिया था। इससे पहले मैं और सत्संग कंटिन्यू करूं, अंकल विद योर परमिशन मैं अपने हस्बैंड को बुलाना चाहूंगी, क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी है, और वो भी एक शुक्राना बस करेंगे गुरुजी का। श्योर सारिका आंटी, यू आर मोस्ट वेलकम। कांग्रेचुलेशंस प्रणाम गुरु संगत, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को आपकी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। थैंक यू करना चाहूंगा गुरु जी का फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर उन्होंने हमें जो दिया है, सब कुछ उनकी ब्लेसिंग्स हैं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर एवरीथिंग। सॉरी प्लीज मैं कंटिन्यू करूंगी अंकल। मैं बस चाहती थी वो भी आके शुक्राना कर दें, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी थी। तो वहां से अंकल शुरू करते हैं। तो फिर उसके बाद ये होता गया कि आज हमें बहुत कुछ पता है, क्योंकि संगत एक दूसरे में बात कर लेती है, चीजें शेयर कर लेते हैं। जब मैं गुरुजी के पास जाती थी एम्पायर स्टेट, तो मैंने कोई वहां सत्संग सुने नहीं, मैं किसी को जानती नहीं थी, मुझे किसी का नाम भी नहीं पता था। तो इसलिए मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी से क्या बात करते हैं, क्या नहीं करते, क्या मांगते नहीं मांगते, ये मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने तो इतना मांगा है उनसे, क्योंकि बस मुझे तो लगा मुझे तो मिल गए सब। तो मैंने उनसे इतना मांगा है कि कोई हद जिसकी नहीं है। अपने लिए नहीं, सिर्फ मैं बोलने की ये कोशिश कर रही हूँ कि जो मैंने मांगा, फिर वो मेरे लिए हो या किसी और के लिए हो, वो छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज, जैसे किसी का कैंसर ठीक करना, गुरुजी ने किया है। मुझे ये सब नहीं पता था, तो मैं आज तक गुरुजी से सॉरी बोलती हूँ। तो जर्सी यहाँ आके मुझे पता चला दैट, क्योंकि यहाँ ज्यादा सत्संग हुए, सब कुछ हुआ, तो मुझे पता चला। पर उसके बीच में मैंने जो मांगा सब कुछ गुरुजी ने करा दिया। और क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी है, तो मैं एक चीज हमारे वेडिंग के बारे में भी शेयर करना चाहूंगी कि मैं जब यूके में थी, तो मैं तब मैरिड नहीं थी। अत्रेश मेरे हस्बैंड इंडिया में थे, मैं यूके में थी। और तो ऐसे ही शायद मैंने गुरुजी से बोला होगा कि हाँ, क्योंकि हम सोच रहे थे कि जब मैं वापस आऊंगी तो हम शादी कर लेंगे। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी सब ठीक है ना, हम दोनों साथ से, आप थोड़ा बता दें। फिर से मुझे एक ड्रीम आया जिसमें मैं और अत्रेश किसी आश्रम में हैं, और दैट आई एम प्रेग्नेंट। तो बस ये इतना आया with obviously our child। तो बस इतना आया। मैंने कहा ओके, तो मेरे को लगा ये इंडिकेशन है। एंड देन फिर जब हमारी शादी हो भी रही थी, तो होता है आप इतना
तब भी लड़ाई तो हम हमेशा ही करते रहते हैं, आज तक करते रहते हैं, पर तब भी हो रही थी। तो मैंने फिर से गुरुजी से बोला और शादी में 1 हफ्ता रह गया था। आई रिमेम्बर एग्जैक्टली 1 हफ्ता रह गया था, शिवरात्रि का दिन था और मैं बड़े मंदिर गई थी उसी फ्रेंड के साथ, अनु के साथ, जो मुझे गुरुजी के पास सबसे पहले लेके गई थी। ये 2006 की बात है और मैं गई और शी सेड अब मैं तुमको लेके जाऊंगी। आई सेड ओके। तो मैंने फिर से गुरुजी से ऐसे ही मन में कहा, मैंने कहा गुरुजी शादी 1 हफ्ते में है, तो अगर कुछ इंडिकेशन मिल जाता, कुछ ऐसा कि आपने ब्लेस कर दिया है हमें, तो अच्छा लगता। अगेन देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। फिर से सिंगला अंकल मिले, अनवर में साथ खड़े थे और सिंगला अंकल ने मुझे गुरुजी का एक लॉकेट दिया। तो मैंने कहा गुरुजी मिल गया, आपका ब्लेसिंग हो गया फिर से। तो ये हमारी मैरिज का था। उसके बाद मेरी जॉब थी, सब कुछ था, तो मैं गुरुजी के पास इतना जा नहीं पाती थी। और लाइक आई सेड, मुझे नहीं पता था गुरुजी से मांगते नहीं है, तो मैंने तो धड़ाधड़ मांगा। पर मैं इतना जा नहीं पाती थी, तो मैं लेकिन अपने बर्थडे के टाइम जरूर चली जाती थी। तो जब 2007 में भी यही था, मेरा बर्थडे आ रहा था, तो और कुछ ना कुछ हमेशा होता था मेरे बर्थडे के आसपास, अच्छी चीज होती थी और मुझे लगता था ये मेरा गिफ्ट है गुरुजी से मुझे। 2007 में मेरी जॉब में 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ था और मैंने सुना था यूजुअली लोगों को ना 1 साल के बाद प्रमोशन मिलता है, एंड मैंने बहुत मेहनत की थी जॉब में। और मैंने ऐसे गुरुजी से कहा, मैं कहा गुरुजी मेरा बर्थडे आ रहा है, तो मेरे को तो प्रमोशन चाहिए। और वो 1 साल से पहले था, मतलब मैं 1 साल अगस्त में कंप्लीट करने वाली थी और मेरा बर्थडे जुलाई में होता है। तो मैंने ऐसे ही गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे को तो मेरा प्रमोशन चाहिए, मेरे बर्थडे से पहले चाहिए, बस ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। तो ये मैंने मन में कहा और ये 2007 की बात है। तो जब मेरा बर्थडे था उससे 2-3 दिन, और अनु और मेरा बर्थडे एक दिन होता है, जो मुझे लेके गई थी गुरुजी के पास, हमारा बर्थडे एक दिन होता है। तो मैंने उनको फोन किया कि देखो हमारा बर्थडे आ रहा है, तो चलो गुरुजी को मिलके आते हैं एम्पायर स्टेट। कहती है तुमको पता नहीं है? तो मैंने कहा मुझे क्या नहीं पता। शी सेड गुरुजी तो चोला छोड़ चुके हैं। एंड I froze, my heart broke and I'm like, what are you even saying and how? And आज ये सब है सोशल मीडिया वगैरह, तो आपको कुछ भी हो तो इमीडिएटली पता चल जाता है। मुझे नहीं पता था। एंड उस दिन मुझे इतनी अपने आप पे शर्म आ रही थी कि मैंने कहा कि हम गुरुजी से सारा वक्त मांगते रहते हैं। मैं गुरुजी से इतने टाइम से मिलने नहीं गई थी, शायद कुछ 5-6 महीने तो हो गए होंगे मैं नहीं गई थी गुरुजी से, मिली नहीं थी। शायद मैं जैन या फेब 2007 में मिली होंगी लास्ट, पर कुछ महीने हो चुके थे। और उस दिन मेरे को इतना अपने पर शर्म आ रही थी कि हम मांगते सब कुछ रहते हैं, मैं गुरुजी से मिलने नहीं गई क्योंकि मेरी जॉब ऐसी थी कि बहुत लेट घर आती थी मैं, और नहीं हो पाया। मैंने कहा हाँ मांगने के लिए तो तुम मांग लो। और जो एक चीज थी जो गुरुजी से मिलना था, मिले नहीं। और आज भी हाँ तुम्हारा बर्थडे है तो तुम ब्लेसिंग लेने जा रहे हो, जो चीज मांग रहे हो, और ये तक तुमको नहीं पता था, इतने उलझे हुए थे तुम अपने लाइफ में, तुमको ये भी नहीं पता था कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं। उस दिन बहुत बहुत शर्म आई अपने आप पर। और मुझे याद है मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, वो कहीं गए थे एंड का काम था, और मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड के नाना जी वो घर पे थे। एंड माय हार्ट जस्ट ब्रोक एंड आई सेड यू नो व्हाट, मेरे को एटलीस्ट एम्पायर स्टेट तो जाना है। मुझे पता था वहां शायद कोई ना हो, मैंने कहा बस अपने सेटिस्फैक्शन के लिए मुझे जाना है एम्पायर स्टेट। तो मेरे मदर इन लॉ और उनके फादर जो मेरे हस्बैंड के नाना जी, तो वो मेरे साथ चले। हम एम्पायर स्टेट गए, वहां कोई नहीं था, लेकिन गुरुजी की नीस बाय चांस वहां थी। एंड मैंने उनको बताया कि क्या हुआ, और ये 2-3 दिन पहले है मेरे बर्थडे से, जुलाई 21 सैटरडे था आई रिमेम्बर। तो कोई भी नहीं था और गुरुजी का बस बड़ा सा स्वरूप था, खाली था एम्पायर स्टेट। और मुझे इतना अजीब लग रहा था कि मैं यहाँ जब भी आई हूँ सब इतना हरा भरा, इतनी रौनक, लाइट्स, सब कुछ होता है। आज कोई नहीं, आज गुरुजी नहीं है यहाँ पे, और मैंने अपना चांस मिस कर दिया। मैं उनसे मिली नहीं, मैं सिर्फ अपनी लाइफ में उलझी रही। वो लकीली क्योंकि उनकी नीस वहां पे थी
अगेन नो कोइंसिडेंसेस। तो वो मुझे किसी तरह समझाने की कोशिश कर रही थी, मुझे शांत करने की कोशिश कर रही थी। एंड उन्होंने भी लाके मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया, वो भी है मेरे पास आज तक। लेकिन जब मैं वहां बैठी हुई थी, मैं कहा बस थोड़ी देर यहाँ बैठना चाहती हूँ गुरुजी के पास। तो वो कहते हैं ऑफ कोर्स। तो हम बैठे वहां जो भी 5-10-15 मिनट। जब मैं बैठी तो ऐसा लगा कि गुरुजी मेरे से कह रहे थे कि पागल है, क्यों रो रही है, मैं कहाँ गया हूँ, मैं यही हूँ। एंड बस वो हो गया। उस दिन जुलाई 21 चला गया, ठीक है। मैं घर आई, वाज अपसेट। एंड जुलाई 24 मेरा बर्थडे होता है, तो वो भी आया चला गया, सब हो गया। जुलाई 27 आउट ऑफ नोवेयर, मतलब अगेन वो फ्राइडे था, तो जुलाई 27 में ऑफिस में थी और सडनली था कि वो सारी टीम्स की मीटिंग है और एक गेट टुगेदर भी है, क्योंकि हर कंट्री से टीम्स आई हुई थी। तो वो पार्टी वगैरह सब कुछ हो रहा था। जब पार्टी वगैरह हो रहा था तो उसी दिन जुलाई 27 को मेरे हाथ में मेरा प्रमोशन लेटर आया। मैंने कहा मेरा प्रमोशन लेटर, और वो पार्टी में मेरे डायरेक्टर भी खड़े हुए थे, जो वाइस प्रेसिडेंट जो भी थे बहुत बड़े। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा ये सडनली, कहते हैं ये तो डिले हो गया, ये तो और पहले आ जाता। मैंने कहा थैंक यू। और मैंने लेटर पे डेट देखी और लेटर पे डेट थी जुलाई 23। मेरा बर्थडे जुलाई 24 होता है। श्योर इनफ गुरुजी ने मेरा प्रमोशन का लेटर सब रेडी था और मेरे बर्थडे से पहले, जैसे मैंने मैं क्या बोलूं, उस दिन और शर्म आई कि, और मैं तो भूल गई थी ऑब्वियसली, मुझे लगा तुम मेन चीज तो तुमने मिस ही कर दी। गुरुजी तो चले गए, तो मैं ये सब भूल चुकी थी जो मैंने उनसे मांगा था, ऑफ कोर्स, क्यों। लेकिन ये देखो हम कैसे भी हूं, उन्होंने ये भी कर दिया। और आज तक मैं, और उस दिन के बाद मैं ये ऑनेस्टली बात आपसे बोलती हूँ कि जब वो चोले में थे, मैंने उनको भगवान का दर्जा नहीं दिया था अपनी लाइफ में, लेकिन हाँ एक ऐसे महापुरुष का दे दिया था जो मेरा मीडियम है भगवान जी की तरफ, वो ही है वो। तो उन्होंने चोला छोड़ा, उसके बाद मुझे समझ आया कि वो थे कौन और हमें कौन मिल गए थे। और उस दिन के बाद से मेरे लिए वो सिर्फ भगवान नहीं है, सिर्फ गुरु नहीं है, वो बहुत चीजें हैं। 4 मेन चीजें हैं। वो भगवान जी हैं मेरे, वो मेरे गुरु जी हैं, वो मेरे फादर हैं जो कि वो खुद बोल चुके हैं, पापा जी, और वो मेरे बेस्ट फ्रेंड। मैं कुछ बोल दूं, मैं कुछ कर, लाइक ऐसा होता नहीं कि उसका जवाब किसी ना किसी तरह मेरे तक नहीं पहुंच जाता। और अगर जिस दिन मैंने रो दिया अपसेट होके किसी बात पे, मजाल है वो चीज थोड़ी देर में ना ठीक हो जाए। जैसे एक फादर अपने डॉटर को अपसेट नहीं देख सकते, आंसू तो बिल्कुल ही नहीं देख सकते, उसी तरह गुरुजी मेरे लिए है। मुझे पता है, किसी को कुछ पता हो ना हो, उनको तो सब पता है। और मैं उनको बोलती हूँ गुरुजी मेरे से तो ये रिचुअल वगैरह ज्यादा होता नहीं है कि अमृत वेला उठूं या ये करूं या फास्ट रखूं, या मुझसे शब्द भी मुझे समझ नहीं आते। मैं मतलब आ भी जाए मैं कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ, मेरा ध्यान भटकता रहता है इधर से उधर। मैं सत्संग सुन लेती हूँ और मुझे सत्संग याद रहते हैं, और डॉगी जैसे मेरे कान खड़े हो जाते हैं सत्संग के वक्त। मुझे बहुत अच्छा लगता है सत्संग सुनना, और ऐसा लगता है जैसे किसी गुरुजी ने प्यार पहुंचा दिया किसी के थ्रू। तो मैं सत्संग सुनती हूँ। तो मैं गुरुजी को हमेशा बोलती हूँ कि मेरे से शब्द नहीं सुने जाते, रिचुअल नहीं होता, ये पूजा पाठ ध्यान बैठना नहीं होता मुझसे। लेकिन एक चीज है गुरुजी, मेरे पास और कोई नहीं है। मैं तो आप मतलब जो ऐसे समझे मुझे, तो मैं आपसे ही बात करूंगी। और मैं पूरा दिन बात करती हूँ गुरुजी के साथ, पूरा दिन। और मैं गुरुजी अब मांगते नहीं है, मुझे पता है कि मांगते नहीं, तो मैं गुरुजी को, मैंने इसको थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है। मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी मुझे पता है मांगते नहीं, लेकिन कम्युनिकेशन में ना कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आपकी तरफ। जो मैं आपसे मांगू उसमें ना कोई, मतलब जो मुझे चाहिए उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, तो मुझे बोल लेने दो जो मुझे चाहिए। लेकिन डिस्क्लेमर आपके पास है कि
जो आपको बेस्ट लगे आप वही करना, मुझे बस मेरी शांति के लिए, मेरी खुशी के लिए बोल देने दो, अपने मन से निकाल देने दो कि मुझे तो मेरा मन इस चीज पे है, लेकिन जो आपको बेस्ट लगे आप वो करना। जो मेरे मन का है मेरे को मिल जाएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी, लेकिन अगर मेरे मन का मुझे नहीं मिलता तो हाथ भी आप ही ने पकड़ना है मेरा, क्योंकि फिर वो सिचुएशन से आप ही निकालो मेरे को, मैं अकेले तो कर नहीं सकते। तो ऐसे करके मैं अब गुरुजी से बात करती हूँ। जैसे अंकल मेरे को बता दीजिए मेरे पास और कितना टाइम है, तो मैं उस हिसाब से सत्संग शुरू करूँ। और सारिका आंटी, इससे पहले कि आप ये सोचें कि आपने क्या सत्संग आगे शेयर करना है, I'll be seeking your permission to invite Victor to interact with you. Over to you, Victor. Hey, Jai Guruji. So, I guess where do I begin? What can I say about Sarika that hasn't already been said? She's an amazing soul, and just like Arti Kapoor Auntie said, she always has a smile despite anything she might be going through. Sarika, I would describe her as someone who is extremely loyal to the people she loves, but also dedicated and loyal to Guruji and her seva. Guruji's given her an incredible talent of dance that she uses to gracefully express her love for her Guru. And she shares this talent with so many, including me, with unconditional love. So I'm extremely grateful to you, Sarika, for all of those moments and your patience when you were trying to teach someone like me how to dance for our Guru. So Sarika, my fellow hugger, may Guruji always keep you healthy and protected, and may he always keep you smiling and dancing even in the darkest of storms. Jai Guruji. Thanks. जय गुरुजी। अंकल आपके सरप्राइजेस खत्म नहीं होते, ये तो स्वीटनेस बढ़ाते जा रहे हो आप बिल्कुल सरप्राइजेस का। This is a word of surprises. And सारिका आंटी, जैसे कि मुझे बताया गया था कि न्यू जर्सी मंदिर में यू आर कंट्रीब्यूटिंग योर सेवा एज ए कोरियोग्राफर, और जितने भी फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, तो उसमें म्यूजिक का और ये जो डांस का जो है सारा आप ऑर्गेनाइज करती हैं। तो आप जो आने वाले जो आपके सत्संग होंगे उसमें प्लीज आल्सो इंक्लूड दिस। आने वाले में क्या अंकल? Whatever you are going to share now, you have more than half an hour now. You may also include some of your experiences with New Jersey Mandir. बिल्कुल अंकल। जय गुरु जी। नहीं, जय गुरु जी। मैं अभी रिकवर कर रही हूँ उसके, और मैंने कर रहा है, एंड मुझे नहीं पता था कि वो भी बोलेगा, बट ये फैमिली गुरुजी ने दी है। ये तीनों जो आज आके बोले हैं, ये इनके साथ अलग अलग कनेक्शन है। और विक्टर के लिए एक चीज कहना चाहूंगी कि ये एक लाइन इंग्लिश में बोल दो ताकि विक्टर को भी समझ जाए। हाँ। Victor, if you listen, can you hear me? Yeah, I can hear you. Victor, this is like one of the sweetest surprises. I just want to say, I can't say a lot in English because not everyone will be able to understand, but I want to say this for you so that you can understand. You are, it doesn't even feel like you're not one of us. You don't understand our culture or our language. I break into Hindi in front of you so many times because I feel, oh yeah, he will understand. Like it's not even a thought. And you belong to a different culture per se, and you may not understand our language fully. You understand quite a bit, but not fully. And forget our songs for that matter. But look at you, the seva you do in every which way, whether it is related to langar, related to sangat, related to satsang, related to dancing for Guruji.
you don't understand any of this and you do such a fantastic job. And Suresh uncle, with Victor's permission, I'll try to see how, if it's even permitted, but Victor का डांस आप सबको देखना चाहिए कि उसने गुरुजी के लिए कैसे डांस किया. Sarika aunty, very soon we are going to invite Victor uncle, and he will be sharing his experiences very soon, within 2 months. Lovely. And किसी को मौका मिले तो किसी को देखना चाहिए कि विक्टर अंकल कैसे डांस करते हैं. आप हमारे हिंदी गानों पर उन्होंने कैसे डांस किया है. और फिर I'm sure aunty, you might have trained him. अरे अंकल ट्रेन क्या, ये हमने साथ में किया है डांस. और एक वो मेरे पार्टनर थे परफॉर्मेंस में, तो परफॉर्मेंस और अच्छा हुआ. वो इतने अच्छे हैं, और इतना डेडिकेशन है उनमें गुरुजी के लिए कि ना उनको भाषा समझ आ रही है, ना उन्होंने वो गाने सुने होंगे, भले हिंदी मूवी के हो या उन्होंने नहीं सुने होंगे, पर उन्होंने कैसे परफॉर्म किया. यही गुरुजी की सेवा के लिए भाव है कि वो ना भाषा देख रहे हैं, ना कल्चर, ना कुछ, लेकिन अपना बेस्ट करके गुरुजी के लिए कर रहे हैं. तो ये तो ज्यादा उन पर है, उनकी अच्छाई इस चीज में, और गुरुजी की उनको ब्लेसिंग है कि तो जितने अच्छे वो इंसान है वो तो सब जानते ही हैं. और वेरी डेडिकेटेड, प्योर सोल. बिल्कुल. एंड मेहर है गुरुजी की, करम है गुरुजी का कि वो इतने अच्छे. I can say the same about you. I can say the same exact thing about you, Sarika. Completely dedicated, and like I said, patient. And you know, everything you do it with a lot of love. So I do appreciate our friendship. I do too, and thanks to Guruji, thanks to Aarti कि हम सब मिले, and we became a family. और आप में से कभी भी कोई न्यू जर्सी आए तो सुरेश अंकल और सब, तो आप आके देखेंगे कैसे ये सब परिवार एक है. और इंडिया से दूर भी कैसे गुरुजी का मंदिर गुरुजी ने बनवाया है और चलवा रहे हैं. ये सब इन्हीं लोगों की वजह से है कि कैसे वो सेवा करवा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, और आपको कोई फर्क नहीं महसूस होगा उस भाव में किसी की भी तरफ से. जय गुरुजी. विक्टर अंकल. जय गुरुजी. विक्टर अंकल. Yes, Jai Guruji. Today is their anniversary. Buddy, please congratulate them. Oh yeah, absolutely. Congratulations to both of you. Thank you so much. This is so special, so special. There couldn't have been a better start to the day. Yes, and may Guruji always keep you both happy and, like I said, healthy and prosperous. You know, I know this is mostly about you and you sharing your satsang. But I can say I can also share great things about Adresh. Someone who's full of love, very welcoming, warm, and just an amazing person. So I think the two of you are an amazing couple. And like I said, my greatest desire is that Guruji just continue to keep you both happy and healthy together. Thank you so much for all that love, and thank you Suresh uncle. आप इतना एक तो सेवा दिलवाई, उतना प्यार दिलवा रहे हैं सबसे. जय गुरुजी. This is Guruji's कृपा, Guruji's blessings for all of you. Over to you, Sarika aunty. अपनी संगत शेयरिंग करिए प्लीज. जय गुरुजी. जी. मैं सोच रही थी आगे क्या बोलूं, और फिर आपने कहा कि ये इनसे कुछ न्यू जर्सी मंदिर से रिलेटेड कुछ कहूँ. और ये परफॉर्मेंस से एक चीज में करेक्शन, मैं एक्चुअली वो सारा ऑर्गेनाइज नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ परफॉर्म करती हूँ. लेकिन हाँ, मैं कोरियोग्राफ कर देती हूँ, सारे नहीं, लेकिन जो मैं कर सकूँ. फिर वो बच्चों का हो, बड़ों का हो, 1, 2, 3 जितने भी टाइम मिले उसके हिसाब से. तो मैं ऑर्गेनाइज वगैरह ये आरती और सारी टीम करते हैं, और ये मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं. और आरती ने ही विक्टर के बारे में मुझसे बताया, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि किसके साथ डांस करूं. मुझे पार्टनर की जरूरत थी डांसिंग के लिए, और मुझे नहीं पता था, कोई मान नहीं रहे थे लोग, ना ही मुझे समझ आ रहे थे कौन. और आरती ने मुझसे कुछ साल पहले कहा कि विक्टर बड़ा अच्छा डांस करते हैं. मैं कहा अच्छा.
और मैंने इनको अप्रोच किया और गुरुजी ने, अब आई विश मैं वो वीडियो दिखा सकती कि वो कितना अच्छा डांस करते हैं, हमारी भाषा ना भी समझते हुए कितना अच्छा उन्होंने किया। तो एक तो गुरुजी की मेहर ये रही, और एक बार और ऐसे 2 सत्संग हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगी जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। तो बहुत साल पहले ऐसे गुरुजी ने दिखाया दैट आप, और मैं हमेशा सोचती थी मैं गुरुजी ये, तो जब भी मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं कैसे कर पाऊंगी, तो मुझे ये सत्संग, ये गुरुजी के वचन याद आते हैं कि ये कुछ 10-12 साल हो गए होंगे इस बात को। तो एक बार गुरुजी ने मेरे को दिखाया कि जैसे ड्रेसिंग रूम कुछ है, मैं मतलब स्टेज कहीं आगे है लेकिन पीछे किसी रूम में मैं हूँ और मैं तैयार हो रही हूँ, और सडनली मैं किसी को आते हुए सुनती हूँ तो मैं छुप जाती हूँ बेड के पीछे, क्योंकि मैं तो तैयार हो रही थी। और मैं देखती हूँ गुरुजी आए, तो फिर मैं निकल के आती हूँ, तो मैं गुरुजी क्या हुआ, मतलब ऐसे तो मैंने नहीं कहा। तो गुरुजी ने मुझसे कहा तेरा काम सिर्फ तैयार हो, बाकी मैं देखूंगा। मतलब वो बताने मुझे ये बोल रहे थे कि तेरा काम सिर्फ तैयारी करना है, अपने आप को तैयार करना है, और ये जो परफॉर्मेंस चलते रहेंगे तो मैं देखूंगा कैसे कि ये चलते रहे और कैसे, मतलब ये मैं एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बोल रही हूँ लेकिन ये उनका मतलब था कि तेरा काम तैयार होना। और ये उनकी मेहर है, क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी कि अरे ये इसके रिहर्सल के लिए टाइम कैसे निकलेगा, ये कैसे होगा, कभी ऑफिस, कभी कुछ, कभी घर की शिफ्टिंग, कभी लाइक बच्चे से पहले तो चलो फिर भी कुछ होके टाइम निकल आता है, बच्चे के बाद मैं हमेशा, लोग कहते थे तुम ये इतना कुछ कैसे कर लेते हो, मैंने कहा प्लीज मुझे करने दो ये सब कुछ अभी, बिकॉज मेरा बच्चा आएगा तो फिर मेरे पास कैसे टाइम होगा करने के लिए। तो जितने मैं अभी कर सकती हूँ, जो आइडिया मैं अभी लगा सकती हूँ परफॉर्मेंसेस में, मैं लगाऊंगी। और जितना हम बड़े बड़े ग्रुप परफॉर्मेंसेस भी करते हैं तो मैं तो कहते हैं इतना कैसे कर रहे होते हो, कोऑर्डिनेट कैसे करते हो। मैंने कहा मुझे अभी बस करने दो जैसे गुरुजी करा रहे हैं, क्योंकि एक बार बच्चा हुआ तो फिर कैसे हो पाएगा, फिर तो शायद ना हो, इसलिए मैं अपना सारा अभी निकाल रही हूँ, जो आइडिया आएगा दिमाग में मैं अभी लगा रही हूँ, और इसको हम और बड़ा और बेटर और प्रॉप्स ये यूज करें, कभी वो ये सरप्राइज एलिमेंट लाएंगे, ये करेंगे, क्योंकि पता नहीं बाद में तो कैसे होगा। और वो आज 2 साल का हो चुका है, और गुरुजी की मेहर है कि कैसे आज भी वो करवा देते हैं किसी न किसी तरीके से। एक आध बार हुआ है कि मैं नहीं कर पाई हूँ तबीयत की वजह से या कुछ, लेकिन बाय एंड लार्ज गुरुजी करा देते हैं। और मैं सोचती हूँ मैं कभी तो ये भी रिहर्सल पे साथ चलता है मेरा छोटू, और लेकिन छूट गुरुजी करा देते हैं। और ऐसे ऐसे सिचुएशन हुए हैं जहाँ एक बार भी पूरी रिहर्सल सारी टीम के साथ नहीं हुई है, कभी कोई नहीं आ सका, कभी कोई नहीं आ सका, कभी कोई बच्चा नहीं आ सका, कभी किसी क्लास निकल आई। ऐसे हुए हैं इंस्टेंसेस जहाँ पे मुझे याद है एक बार तो ऐसा था, एक रिहर्सल भी नहीं हुई थी सारी टीम के साथ, 9-10 लोग थे, एक भी नहीं हुई थी। और जब परफॉर्मेंस हुआ तो सबने कहा बहुत अच्छा है, बच्चों ने क्या किया है। मैंने कहा किसी को पता भी चलेगा कि ये एक बार भी साथ हमने रिहर्सल नहीं की, गुरुजी करा रहे हैं, हमने क्या किया, हमने अपनी कोशिश की। लेकिन आप किसी भी से पूछ सकते हैं कि अगर कोई सोलो बंदा करे परफॉर्मेंस तो चाहे गलती की तो किसी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, उसको क्या पता स्टेप्स क्या है। पर अगर 9-10 लोग हों और 8 लोग एक चीज कर रहे हैं, 2 कुछ और करेंगे तो सबको समझ आ जाएगा। लेकिन गुरुजी ने हमेशा अपनी मेहर रखी, अपना हाथ रखा है कि सब ठीक से उन्होंने करा दिया है। और एक और सत्संग आपसे शेयर करना चाहूंगी, ऐसे तो बहुत है कि मैं ये 2013 की बात है, और ये मेरे घर के बारे में है कि हम पहली बार घर ले रहे थे। और जब हमने पहली बार घर ले रहे थे तो मुझे वो घर इतना पसंद नहीं आ रहा था, वो टाउन हाउस था और मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन मजबूरी हो रही थी क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड अलग रह रहे थे डिस्टेंस की वजह से। उनका काम डेलावेयर में था, मेरा काम न्यू जर्सी में था, और रहते हम न्यू जर्सी में थे, पर उनके लिए रोज कम्यूट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। 1.5-2 घंटे का 1 वे का ट्रैवल था। तो वो मंडे टू फ्राइडे डेलावेयर में रहते थे और फ्राइडे आ जाते थे न्यू जर्सी। फिर हमने कहा अच्छा चलो बीच में कहीं घर लेते हैं, ये न्यू जगह उनका ट्रैवल थोड़ा कम हो जाए ताकि वो रोज आ जा सके, मेरी जॉब पे भी फर्क ना आए।
घर ही नहीं मिल रहे थे बजट में नहीं, तो वो सब चल रहा था। एंड एक घर मिला जो मेरे हस्बैंड को ठीक लगा, यही वो टाउन हाउस, और मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मुझे थोड़ा छोटा लगा, बात मुझे ठीक नहीं समझ आई। लेकिन मैं गुरुजी को हमेशा बोलती थी, मैं गुरुजी, और ऐसे बहुत घर थे जो हम दोनों को बहुत अच्छे लगे, हमने बजट से ऊपर जाके ऑफर डाला, पर वो नहीं वर्कआउट करते थे। मैं फाइनली गुरुजी से कहा, मैं गुरुजी हमें कोई चीज जितनी भी पसंद आ जाए, जितनी भी पसंद आ जाए, अगर हमारे लिए ठीक नहीं तो मत होने दो। मतलब कोई चीज अगर नहीं वर्कआउट की तो अब मैं समझ जाऊं कि वो हमारे लिए थी ही नहीं, हम अपना बेस्ट देंगे, लेकिन नहीं कर रहा तो वो मतलब आपकी तरह कोई चीज हमें नहीं पसंद आ रही, लेकिन अगर उस पर बात बन रही है, मामला आगे जा रहा है, तो मैं समझूंगी कि आप चाहते हैं कि हम ये करें। और मैं गुरुजी को बोल रही थी दैट गुरुजी मुझे तो पसंद नहीं है, पर हम ऐसे अलग कब तक रहेंगे। तो मैंने कहा अब मैं ऑफर डालती हूँ, अगर अच्छा नहीं है और अगर ये आगे गया तो मतलब आपकी मर्जी है इसमें। श्योर इनफ आई रिमेम्बर May 13th का दिन था, और त्रेश मेरे साथ भी नहीं थे, वो डेलावेयर में थे क्योंकि मंडे का दिन था। तो ऑफर मैंने ही जाके डाला, बात करके ऑफ कोर्स, पर हमने कहा हम ऑफर डालेंगे, लेकिन पेपर मैं जाके सबमिट करके आई। और जब मैं घर आई, मैं रात को अकेली थी घर में, तो जब मैं तो गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए, और मेरे को लग ही रहा था गुरुजी आने वाले, और मैं डर गई। घर में अकेली हूँ, मैं बहुत डर जाऊंगी अगर आप आए तो दर्शन में, मतलब क्योंकि आपका दर्शन भी लेना कितनी बड़ी बात है, लेकिन मैं डर जाऊंगी, मैं रोज तो आपसे नहीं मिलती हूँ ऐसे। और श्योर इनफ गुरुजी आए, इतने बढ़िया चोले में आए, इतने पर्पल कलर का चोला, इतनी सारी ज्वेलरी उन्होंने पहनी हुई उस दिन, मैंने उनको ऐसे कभी पहले नहीं देखा। और गुरुजी ने कि एक चरण के स्वरूप की फोटो है, तो उसमें उनके चरण इतने क्लीन नहीं दिखते, मतलब नील्स में डर्ट नजर आता है। तो मैं ऐसे ही गुरुजी से बोला था, मैं गुरुजी आपके चरण है। मैं गुरुजी से ऑनेस्टली बात करती हूँ, किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर कुछ भी मन में आता है उनसे बात करती हूँ क्योंकि वो मेरे फादर हैं। तो मैं गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी आपके चरण है, तो वो गंदे कैसे हो सकते हैं? मैं कहा इतने गंदे क्यों दिख रहे हैं, उसमें डर्ट क्यों नजर आ रहा है उन चरण के स्वरूप में? आपके तो बिल्कुल क्लीन स्पॉटलेस होने चाहिए बिल्कुल। ये ऐसे ही मैंने कुछ दिन पहले मन में कह दिया था। तो उन्होंने कहा कि तो मुझे ये गुरुजी ड्रीम में उन्होंने दर्शन दिए, तो वो आए सामने सारा कुछ पहन के, तो मैंने ऐसे गुरुजी, और गुरुजी कहीं चलने लगे, मैं कहा गुरुजी मैं आपके पीछे पीछे आऊं, मतलब मेरी अपार्टमेंट जिसमें मैं रह रही थी उसकी बैल्कनी से कहीं कोई रास्ता नहीं था, पता नहीं कैसे जा रहे थे वो। मैं कहा गुरुजी मैं आपके पीछे पीछे आऊं? कहते यस माय डियर। मैं उनके पीछे पीछे गई, और वो ऐसी जगह गए जैसे हर जगह लाइट्स थी, लेकिन कोई इंसान नहीं नजर आ रहा था, जैसे हरिद्वार हो या बनारस, जैसे घाट के पास कहीं पर, लेकिन बहुत लाइटें जगमगा रहा है लाइटों से हर जगह, लेकिन कोई इंसान नहीं नजर आ रहा था मुझे। तो गुरुजी जाके गली में बैठ गए एक आसन पर, और वो बैठ गए और मैं नीचे बैठ गई जमीन पर, और उन्होंने और मैं ये भी भूल गई थी कि कभी मैंने गुरुजी को, जब मैंने चोले में मिली तो मैंने आज्ञा तो लेती थी, पर क्या सच में मैंने उनके चरण छुए थे? मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने छुआ था उनको या नहीं, मुझे याद भी थे दिमाग में। जब गुरुजी आसन पे बैठे तो उन्होंने अपना एक चरण मेरे हाथों में दिया, मैंने उसको होल्ड किया, और जैसे ही मैंने उसको होल्ड किया गुरुजी ने अपना हाथ ऐसे ऊपर कर दिया जैसे आशीर्वाद, और मैंने वो उनका वो फुट वो देखा, वो इतना मुलायम, वो इतना अच्छा, क्लीन स्पॉटलेस, जैसे मैं गुरुजी को बोलती थी आपके तो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे वो दिखा दिया कि उनके चरण एक्चुअली कितने अच्छे हैं, इतने सॉफ्ट हैं, और ये भी चीज कि मैंने उनको छुआ या नहीं वो भी उन्होंने पूरी कर, ये उन्होंने मुझे दिखाया जिस दिन मैं ऑफर लेके आई घर में। और उसी पे थोड़े टाइम बाद वो मुझे कहीं लेके गए, किन्हीं के घर, मैं उनको नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने आरती से पूछा था इसके बारे में कि क्या ये लोग एक हस्बैंड वाइफ जो क्लासिकल डांसिंग में हो या डांसिंग में हो। गुरुजी मुझे उनके घर लेकर गए। ये सब गुरुजी ने जो
लेडी हैं उनको बोला कि आपने इनको सिखाना है। मुझे पता नहीं वो कौन थे, लेकिन मैंने जाके आरती से पूछा, मैंने कहा क्या कोई ऐसे हस्बैंड वाइफ थे जो डांसर कपल थे और वो गुरुजी के पास आते थे? एंड शी टोल्ड मी कि वो उनकी फोटो भी है सुरेश अंकल। मुझे कौन है वो? आई थिंक उनका नाम रेड्डी है, उनका सरनेम। जो क्लासिकल डांसर्स हैं हस्बैंड वाइफ, और शायद वो गुरुजी के लिए परफॉर्म भी कर चुके हैं उनके सामने दरबार। हो सकता है फ्रॉम साउथ इंडिया। हाँ साउथ इंडियन है उनका शायद सरनेम। हाँ एंड मैंने शायद पिक्चर देखी है, तो आई थिंक गुरुजी मुझे उनके घर लेके गए और जो फीमेल है उनको उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे को सिखाना है। वो कभी इधर आए नहीं, मैं उधर गई, तो हमारा कुछ मिलना नहीं हो पाया। पर ये 2013 की बात है, ये गुरुजी ने मुझसे कहा था। तो और फिर उस वो घर का ऑफर हमारा हो गया, वो घर हमें मिल गया। हम उस घर में कुछ 9.5 years रहे, और वो घर में जाने से पहले गुरुजी ने मुझे एक और ड्रीम दर्शन दिए कि उस घर में संगत हो रही है, और गुरुजी खुद लगे हुए प्रिपरेशन में। और जब संगत खत्म हो गया तो मैंने गुरुजी को जाके पूछा, मैं गुरुजी सब ठीक हो गया ना? गुरुजी कहते हाँ। और मैंने रिपीट किया, मैंने कहा गुरुजी ऐसे ही बोलने के लिए तो नहीं बोल रहे हो ना, सब अच्छे से हो गया ना? कहते हाँ सब अच्छे से हो गया। तो उस दिन मुझे समझ आया कि ठीक है, मुझे वो घर नहीं पसंद आया, लेकिन वो घर गुरुजी ने ब्लेस किया, और जब तक उन्होंने ब्लेस किया तो हम उस घर में जाएंगे। एंड वो घर में हमने अप्स एंड डाउन्स सब देखा, लेकिन वही घर में हमारा ग्रीन कार्ड आया, हमारा बेबी जो है वो आया, एंड बहुत कुछ हुआ। लेकिन लाइक आई सेड, क्योंकि गुरुजी ने बोला और उन्होंने कहा, दिखाया कि वो घर में सब ठीक है, उनकी ब्लेसिंग उन्होंने दिखा दी उस घर के लिए, तो वी वेंट अहेड विद दैट हाउस। और तो ये एक और सत्संग अंकल परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो मैं आपको बोलना चाह रही थी कि कैसे गुरुजी सब करा देते हैं। अंकल और कितना टाइम है मेरे पास? क्योंकि you have 10-15 minutes. ओके ग्रेट। तो मैं हमेशा एंड में जो एंड का टाइम होता है वो मैं अपने सत्संग के लिए नहीं रखती हूँ। वो 3-4 ऐसे क्यूट सत्संग है जो मुझे बहुत पसंद है, वो दूसरों के हैं, मेरे नहीं है, लेकिन मैं वो इसलिए बोलती हूँ क्योंकि एक तो वो बहुत अच्छे हैं, बहुत क्यूट हैं, वो स्माइल लाते हैं सबके फेस पे, और वो ये दिखाते हैं कि गुरुजी आप पे कुछ बहुत बढ़ा चढ़ा के सीरियस करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, वो जरूरी नहीं है। वो ऐसे छोटी छोटी चीजों में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो इसलिए मैं वो बताती हूँ सत्संग, वो डिफरेंट तरीके के हैं, तो मैं अब वो शेयर करना चाहूंगी अंकल। तो पहला तो ये है कि जैसे किसी को फाइनेंशियल ट्रबल होते हैं, सबको होते हैं, तो हाँ एक्चुअली ये 3-4 शुरू करने से पहले एक छोटा सा और, क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी है, तो ये उन हस्बैंड वाइफ के लिए है जिनका सभी के लिए, हम सबकी लड़ाई होती रहती। तो ये कुछ 12 साल पहले की बात है, और मैंने गुरुजी को, मेरी और त्रिश की किसी चीज पर लड़ाई हो गई, मैं बहुत अपसेट थी और मैं ऑफिस में थी, तो मैं खुल के बात नहीं कर पा रही। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को फोन किया और ऑफिस के वॉशरूम में जाके फोन किया, और मैं उसको बोल रही हूँ, मैंने कहा उसको समझ क्यों नहीं आ रहा है जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ? कहती आ जाएगा समझ। मैंने कहा लेकिन वो आ नहीं रहा। मैंने कहा कि अगर उसको 70-80% भी आ जाए ना समझ, तो बात ठीक है, इट्स ओके। इट्स 70-80% तो उसको पूरी बात जाएगी। तो ये बोल की कुछ 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन ये होके भूल गई, और कुछ दिन बाद गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया कोई और सवाल के लिए जो मैं उनसे पूछ रही थी। किसी की फैमिली में शादी थी, तो उन्होंने दिखाया कि वो जो प्रपोजल जिसके थ्रू आप जा रहे हो वो ठीक नहीं है आपके भाई के लिए, मेरा कजिन के लिए। तो वो करके सारा दिखा के गुरुजी ने मुझे बताया। मैं कहा ठीक है गुरुजी। और फिर गुरुजी एंड में मुझे ऐसे गाल पे ऐसे ऐसे करके कहते हैं और बात ना पूरी समझ आनी चाहिए। तो मैंने कहा एक 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन जो वॉशरूम में हुई है, गुरुजी ने वो भी सुन ली और उस पे भी जवाब दे दिया। तो दिस इज कॉल्ड द हस्बैंड एंड वाइफ्स। ये गुरुजी बैठे हैं, सब देख रहे हैं सबके लिए। और वो जो मैं अब 3-4 सुनाना चाहती हूँ जो मेरे नहीं है,
तो वो शुरू करने से पहले जो मैंने अभी सारे सुनाए उसके लिए मैं गुरुजी को थैंक यू करना चाहूंगी, क्योंकि इतना ख्याल उन्होंने हमेशा रखा है सबका, मेरे को बहुत प्यार दिया है, इंक्लूडिंग आज जो उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया है और ये सारी स्वीटनेस दी है मेरे एनिवर्सरी पे। तो मैं अब शुरू करूंगी वो 3-4 से जो मुझे बड़े क्यूट लगते हैं। पहला तो वो है कि जब सबके फाइनेंशियल ट्रबल होते हैं तो किसी एक अंकल के थे और वो फिर गुरुजी की संगत भी बने कि कहीं उनके पैसे अटके हुए थे जो किसी ने दिए नहीं, जो वापस नहीं कर रहे थे, उनको एक अंकल वापस नहीं कर रहे थे। तो ये परेशान होते थे और शायद उन्होंने गुरुजी से बोला हुआ या नहीं वो नहीं पता मुझे, लेकिन एक दिन वो इंसान आया जो इनको पैसे ओ करता था और आके दे गया। और ये तो हैरान हो गए कि इतना पीछे पड़ने के बाद जब इतने टाइम में नहीं दिए और अब तो छोड़ दिया था, बिल्कुल उम्मीद भी छोड़ दी थी, तो कैसे आके इन्होंने दे दिए पैसे। तो इन्होंने पूछा, कहते हैं आज आपने खुद ही आके कैसे दे दिए पैसे? कहते हैं क्या करूं, एक गंजा सपने में रोज आता है और बोलता है आपके पैसे वापस करने के लिए। तो गुरुजी की बात हो रही थी एंड इस तरीके से गुरुजी ने उनके पैसे वापस दिलवाए। तो एक तो ये था। दूसरा, हमारे एक अंकल है, वरुण दुआ अंकल, आप शायद जानते होंगे, उनके पेरेंट्स भी गुरुजी की संगत है। आई थिंक उनके फादर का नाम इनके दुआ या DN दुआ ऐसे कुछ है, और वो बहुत अच्छे। और वरुण और मेरा बर्थडे एक दिन होता। तो जैसे हम सबके सवाल होते हैं, तो उन्होंने एक दिन गुरुजी से पूछ लिया सपने में कि गुरुजी आप हो कौन? तो गुरुजी ने कहा, ले 10 हुन पार्वती नु नाल लेके घुमा। तो ये एक उनका है। और उसके बाद एक और है जो हस्बैंड वाइफ के लिए जो बड़ा क्यूट है, एक भाटिया आंटी हैं, उनके हस्बैंड तो अब नहीं है, जब वो थे तो अगेन जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में होती रहती है लड़ाई, आर्ग्यूमेंट्स, तो ऐसे एक दिन उन दोनों में हो गया। अब आपको तो पता है कभी कभी होता है कि लड़ाई हो गई तो जो अंकल लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं हमने खाना नहीं खाना। तो वो दोनों लोग उस दिन बिना खाना खाए सो गए। तो जब वो सोए, अब गुरुजी तो कितना प्यार करते हैं अपने संगत से, भूखे पेट कैसे देख सकते। तो गुरुजी आंटी के ड्रीम में आए और बोला कि की बढ़िया है। तो आंटी ने बताया दाल या जो भी। तो गुरुजी ने कहा चल खाइए। तो आंटी ने कहा ठीक है। तो गुरुजी ने कहा ते भाटिया समथिंग। तो आंटी ने कहा ठीक है गुरुजी, मैं पूछ लूंगी पर मैं सिर्फ इको बारी पूछा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। तो आंटी उठे नींद से, ये ड्रीम खत्म हुआ। तो आंटी ने अंकल को उठाया और कहा कि सुनो खाना खा लेते हैं। तो अंकल भी रेडी हो गए खाना खाने के लिए। तो आंटी हैरान कि इतने गुस्से में सोए थे, खाना वाना नहीं खाना था। तो एनीवे दोनों ने जाके खाना खा लिया। तो आंटी ने खाने के बाद अंकल से पूछा कि सुनो, तो बड़ा गुस्से में गए थे कि खाना नहीं खाना है, तो कैसे चुपचाप मान गए भी जब मैंने पूछा? तो अंकल कहते तूने भी तो पूछा ना। तो आंटी कहते मैंने तो इसलिए पूछा कि गुरुजी ने कहा था, उन्होंने ड्रीम सुनाया अंकल को कि ऐसे ऐसे गुरुजी आए थे, और तो इसलिए मैंने पूछा। तो अंकल कहते हैं तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 ये है कि गुरुजी मेरे भी ड्रीम में आए थे। और गुरुजी और अंकल ने कहा कि भाटिया खा ले आंटी को बारी पूछेगी। मुझे बहुत दोबारा नहीं पूछेगी। हाँ बस ये कि भाटिया खा ले आंटी सिर्फ इको बारी पूछेगी और खाली पेट नींद नहीं आएगी। मतलब अब वही है ना, भूख भी तो लगी है ना सबको। तो और अब मैं ये सेकंड लास्ट था, मैं लास्ट बताती हूँ जो मुझे बहुत क्यूट लगता है फिर से। तो इसमें ये था कि अब ये ऑब्वियसली तब की बात है ना जब ये सोशल मीडिया वगैरह तो नहीं था। आज तो सबको पता है गुरुजी कैसे दिखते हैं, तो उस वक्त तो लोगों को नहीं पता था गुरुजी कैसे दिखते हैं। गुरुजी अपने बारे में आने भी नहीं देते थे मीडिया में। तो एक अंकल थे, तो वो ऐसे दिन के टाइम ऐसे झांकते हुए एम्पायर स्टेट में ऐसे बाहर से झांक रहे थे, और कोइंसिडेंटली गुरुजी बाहर आ गए अपनी टी-शर्ट शॉर्ट्स कैट्स में। तो गुरुजी ने अंकल को देखा, कहा कि अभी की
तो वो बंदा गुरुजी, वो यंग था 20s में जो भी था, तो उसने गुरुजी से कहा, सुनिया इत्थे कोई बाबा रहंदा, सबदे व्याह करांदा रहंदा। गुरुजी कहते हैं अच्छा, कंजर ने मेरा तो कराया नहीं हाले तक। फिर कहते हैं जा जा शामी 7 बजे आ जाए। मैं आज तक जानना चाहती हूँ कि वो कौन थे, और जब वो शाम को 7 बजे गए एम्पायर स्टेट, उन्होंने गुरुजी को देखा आसन पे बैठे हुए, और ये समझ लिया होगा कि जिसको वो यूं ही पूछ के चले गए थे वही गुरुजी थे जिसके लिए वो पूछने आए थे। तो उनका रिएक्शन क्या था मैं जानना चाहती हूँ, पर ये मुझे सत्संग बहुत क्यूट लगा, तो इससे मैं एंड करना चाहती थी ये 3-4 से, जो मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। मैं हर बार बोलती हूँ इनको अपने वाले बोलने के बाद। तो अंकल ये थे सत्संग सारे, और मैं आपका सबसे पहले तो ऑब्वियसली गुरुजी का कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, दैट टू हमारी एनिवर्सरी के दिन। मेरे दिमाग में 10 चीजें चल रही हैं क्योंकि कल सुबह हमारी फ्लाइट है, हम इंडिया जा रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, और बहुत चीजें रहती हैं होने के लिए, ऑफिस का भी चल रहा है। लेकिन मैं गुरुजी को कह रही थी, मैं गुरुजी मेरा सब प्लीज ठीक करा देना मेरा डे, और मुझे खुशी है कि डे इतना अच्छा शुरू हुआ कि मैं 6:30 से उठी हुई, मैंने ऑफिस का काम पहले निपटाया कि जो इम्पोर्टेंट है कर लो, ताकि, और मैंने उनको बोला मेरी अपॉइंटमेंट है ये टाइम के लिए, ये हो गया। एंड आपने गुरुजी ने सेवा दी, आपने ये सेवा दी, और इतना प्यार दिया आपने ये सरप्राइजेस के थ्रू, ये सारी संगत के थ्रू, कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। गुरुजी रिमाइंड कराते रहते हैं कि वो कितना प्यार करते हैं। तो गुरुजी सब पे मेहर रखें, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब पे हाथ रखें। हमें कहते थे बंदा बनो तो बंदा बनाते रहे, हमें वर्क इन प्रोग्रेस है, हम बस ये गुरुजी हम पे हाथ रखें और ये करते रहे, हमारा कर्म ठीक रखें। तो थैंक यू टू ऑल।